Hi guys, I welcome you all once again on Insight SSB YouTube channel. This is Vishali and it is going to be part 2 of the current affairs series in which we'll be covering the September current affairs, and you know that this series is the most famous series currently on YouTube when it comes to CDS because you will see all the questions coming from this series itself. You don't have to go for any other resource. 2020 से मेरा जो रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी करंट अफेयर्स हैं डायरेक्टली इसी वीडियो से आते हैं. यू डोंट नीड टू टच एनीथिंग एल्स. व्हाट एल्स डू you need, right? And if you want to see, there was this one particular video जिसमें से directly 6 questions आए थे. Please check it out. It was my last minute revision and उसमें 50 questions is what I taught, and उसमें से exactly 6 questions came in the current affairs. So please इनको अच्छे से follow करना. मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे. It's a very serious talk. And talking about Insight SSB app, you can download this particular app via link in the description box if you need any help regarding any of the examination, be it NDA, be it CDS, be it FCAT. You can join it, and also don't forget to join Telegram channel because यहाँ हम question practice कर रहे हैं. We are also providing you with lot of help जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो. So please go and check it out. Also जो notes हैं of this current affairs will also be provided here. But मेरा suggestion ये होगा that please make handwritten notes because it helps you more. मैं बहुत सारी important information बीच में आपको बताती जाती हूँ. जो आप खुद से लिखोगे that will be better. आपकी memory भी ज़्यादा अच्छी बनेगी. Okay. And this particular series you can go for NDA, चाहे आप prepare कर रहे हो, चाहे आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CAPF और अब FCAT भी, because FCAT का trend has changed a lot of defense related questions are being asked. Now without wasting any more time, let's jump right into the video. Coming to the first one, the first thing that you have to see is यहाँ पे क्या पूछा गया है. 2 statements आपको given है. पूछा गया है which of the following statement is incorrect. Please excited होके correct mark नहीं करना है. The first one is regarding Zagorachoria. This is actually a traditional village जो कि ग्रीस में है and अभी recently UNESCO World Heritage Site की list में add up की गई है. क्या ये सही है? Yes, this statement is completely right. The second one is that अभी recently there are some temples that are found in Karnataka, and Karnataka में भी बेलूर में, ठीक है. सो यहाँ पे फाइंड आउट किए जाते हैं. देयर आर 3 लोकेशंस. तो इनका नाम जो है दैट इज होसल्ला टेम्पल्स, एंड ये भी ऐड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, एंड इट इज द 41st साइट. येस, दे हैव बीन एडेड बट इट इज नॉट द 41st साइट. ये 42nd साइट है. 41st साइट कौन सी है? 41st साइट कौन सी है? 41st साइट जो है दैट इज शांति निकेतन. ठीक है. एंड रविंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी कुछ रिलेटेड है. इफ़ यू गाइज कैन जस्ट रिलेट इट अ बिट, है ना. सो ये क्या हो जाती है? इनकरेक्ट हो जाती है. ऑल अदर इंफॉर्मेशन वर राइट बट यहाँ पे 42nd साइट होना था. सो द आंसर फॉर द सेम विल बी बी, दैट इज ओनली 2 इज इनकरेक्ट. फर्स्ट वाली बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. एल्स इन दिस देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज काइव एंड लवीव. ये जो दोनों साइट्स हैं दे आर इन इजराइल, एंड अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डेंजर दैट वाज फेस्ड बाय यूक्रेनियन सिटीज बिकॉज ऑफ रशिया, सो इसको डेजिग्नेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने एज इन डेंजर. जो साइट्स हैं उसे कंसिडर किया गया है. पूछा जा सकता है कहाँ पर है और किसने इसे मार्क किया. दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डे से इन डेंजर मार्क किया है. Coming to the next question, that is match the following पूछा गया है. नेशनल साइंस डे. नेशनल साइंस डे जो है that is what 24th of February. देन आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे. अच्छा, नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है या किसके बर्थ के ऊपर मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में? जल्दी से बताओ. सो नेशनल स्पोर्ट्स डे का क्या हो जाएगा? दैट इज 29th of August. देन आता है नेशनल स्पेस डे. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज अभी रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने माइलस्टोन अचीव किया है. दैट इज चंद्रयान 3 जो है उसको क्या किया है? लैंड किया है सक्सेसफुली ऑन मून, एंड दिस डे इज नाउ कमेमोरेटेड एज नेशनल स्पेस डे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो FCAT हो या फिर आपका CDS का एग्जाम हो. ठीक है. तो थर्ड का जो हो जाएगा दैट इज फर्स्ट. ऑल्सो जो लैंडिंग साइट थी, लैंडिंग साइट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड दिस टाइम इन एग्जाम. लैंडिंग साइट का क्या नाम था? पिछली बार मैंने आपको बताया था. व्हाट इज इट? शिव शक्ति पॉइंट. याद रहेगा सबको?
देन आता है इंटरनेशनल यूथ डे, अब एक ही बचा है, यू नो व्हाट्स द आंसर फॉर इट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, ठीक है। इसके बाद कुछ थीम्स भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इंटरनेशनल यूथ डे की जो थीम रही थी, दैट इज ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की जो थीम रही थी, दैट इज प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। अब देखो, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एफकैट और सीडीएस के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एफकैट का जो क्वेश्चन पेपर है अब काफ़ी हद तक डिफरेंट हो गया है, करंट अफेयर्स बहुत आ रही हैं। सो हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट, मेरी मंथली जो करंट अफेयर्स आती हैं फॉर सीडीएस, उसको प्लीज़ कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं वो डेवलप कौन सी कंट्री ने किए, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। क्यों पूछा गया, बिकॉज इंडिया जो है फाइनलाइज कर रही है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू यूएस गवर्नमेंट कि हम खरीद सके 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स। किससे खरीदेंगे, हम खरीदेंगे जनरल एटॉमिक्स से, ठीक है। एंड ये जो है ड्रोन्स, दे आर इनटू टू वर्जन्स, वन इज स्काई गार्जियंस, ठीक है, एंड वन इज सी गार्जियंस, ठीक है। सो आई गेस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, स्काई गार्जियंस इन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए सी गार्जियंस। तो ऑफकोर्स इसलिए ये यूज किए जाएंगे, मतलब हमारी नेवी बना नहीं रही है, नथिंग लाइक दैट, टेकिंग फ्रॉम यूएस फॉर आवर नेवी एंड एयरफोर्स, ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दे कैन कैरी आउट स्ट्राइक मिसाइल्स ऑल्सो एंड एलिमिनेट कर सकती हैं टारगेट्स को, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, इंडिया ने अपना फर्स्ट क्या बनाया है, AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है इंद्रजल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क कर लो, पक्का एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, भारत ड्रोन शक्ति 2023 कहाँ होस्ट हुई है अभी रिसेंटली, इट वॉज इन इंडियन एयरफोर्स हिंडन बेस, ध्यान देना, ओके। देन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दिस इज रिगार्डिंग C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन, जो इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है ड्यूरिंग अ सेरेमनी बाय स्पेन, ठीक है। सो ये जो C-295 हैं ये हम एक्वायर कर रहे हैं एंड इट्स अ जॉइंट वेंचर, जो कि देखो टोटल हम लोग 56 प्लेन्स लेने वाले हैं, इसमें से 16 प्लेन्स हम फ्लाईवे कंडीशन में लेंगे फ्रॉम स्पेन इटसेल्फ, इसमें से एक हमें ऑलरेडी हैंड ओवर अभी किया गया है, एंड रिमेनिंग 40 जो हैं ये बनाए जाएंगे एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा एंड एयरबस। कहां पर है ये जॉइंट वेंचर, कहां बनाया जाएगा, इट विल बी मेड इन गुजरात, ठीक है, याद रहेगा। एंड ये हमारी इंडिया की प्राइवेट जो कंजम्पशन है उसके लिए यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं फॉर एफकैट, प्लीज स्टार मार्केट, बिकॉज आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। Then coming to the next one, this is regarding which of the following is air to surface missile. This question has been asked and why it is in news. ध्यान देना, very important again. So हमें याद रखना है एक तो Su-30, ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज हमें याद रखनी है, that is ध्रुव मार्क 4 हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज Su-30 जो है इसमें टोटल 12 जो प्लेन्स हैं उसमें क्या ऐड किया जा रहा है, ध्रुव अस्त्र जो है उसको ऐड किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज दिस ध्रुव अस्त्र, दिस इज एक्चुअली एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, ध्रुवास्त्र हो जाएगा। सो इंडिया जो है उसने ग्रीन लाइट अप दे दी है ऑफ ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम 9 इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसमें से एक जो है दैट इज ध्रुवास्त्र के रिगार्डिंग। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया है एंड ये जो अपग्रेड्स किए जाएंगे इट विल नॉट बी जस्ट इन Su-30 बट ऑल्सो इन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एज वेल, ठीक है। एंड जो ध्रुव मार्क 4 हेलीकॉप्टर्स हैं इसमें क्या होगा, इसमें भी इंटेंट हम कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू यूज ध्रुवास्त्र विच इज अ शॉर्ट रेंज
एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। Now, before moving ahead, I wish to tell you that Serious One 2024 GS का जो त्रिशूल बैच है that all of you have been requesting for on Instagram, on the app, also on Telegram. This is now live, and one thing is there, like if you're a working professional, if you're a student, you don't have much time and you just want to cover all the important topics जहाँ से as it is exam में questions आते हैं, because I follow 80:20 वाला rule, मतलब 80% जो question paper है वो 20% important topics से आता है, and my major focus is to cover this 20% because we don't have this much time कि NCERT भी cover करें, ठीक है, standard books like Lakshmikant etc. There are so many book lists that you have to cover in. If you are in lack of certain time, you can go for this batch and go and check the result of Insight SSB on Instagram handle. 2020 onwards देखना and अभी 2023 तक देखना. You will be shocked to see that how many of our students have made it through. More than 10,000 of our students since 2020 have made it through IFCAD and CDSE. So this is going to be really helpful. Exactly जैसे मेरी current affairs रहती है crisp and to the point. In the same way, this is course that will help you immensely. You don't need to cover any standard books after this. आपके previous year question basis पे ही, मतलब जो ये 20% topics है वही चीज़ इसमें covered है. उसके साथ साथ you'll also find daily question practice. You don't need to do anything else. आपके test series से लेकर, आपके assignment से लेकर, आपकी current affairs से लेकर, everything will be covered into this. And इसके बाद GS तुम्हें कहीं और से touch करने की ज़रूरत नहीं है. And 40+ marks is my guarantee. जहाँ पे बच्चों के 20 marks भी नहीं आते हैं, you will get these 40+ marks sure shot. Also, one very important thing in here, first 100 students are going to get flat 500 off. So everybody who feels that they really want some financial help from my end, this is not for anybody who is financially viable and can sustain the course price, because it is very it's not expensive for sure. So anybody who feels that they can use it, please leave it for the people who actually need help. So unke liye there is this particular thing from my side, and it's only going to be for first 100 students. And believe me, I just have 500 seats in this batch, and it gets filled within 2-3 days of course release. You can go for it, else the batch will be full and then you'll be asking, ma'am please seats बढ़ा दो, ठीक है. Coming to the next one, that is match the following पूछा है, and you know that जितने भी INS हैं ये question बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, that had been in news. Okay, so talking about INS Sumedha, so it was a part of what? It was part of exercise Bright Star. Talking about exercise Bright Star, what exactly it is? It is the largest ever joint military exercise जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो रीजन है उसके बीच हुई थी, एंड इट वॉज होस्टेड बाय इजिप्ट. किसने होस्ट किया? इजिप्ट ने होस्ट किया. ओके, और जो ये आपका एडिशन था, इसमें ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्टिसिपेशन देखा गया, and 34 countries took part into it. The next one is Operation Sajak. Operation Sajak की अगर हम बात करें, this is related to what? It's related to Indian कोस्ट गार्ड, याद रखना, ठीक है. एंड इट इज अ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल एक्सरसाइज जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे है, की जाती है, दैट इज इट, ठीक है. इसके अंदर कस्टम से लेके मरीन पुलिस, पोर्ट्स, इंडियन नेवी, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं. दिस टाइम 118 शिप्स पार्टिसिपेटेड इन इट. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वरुण नेवल एक्सरसाइज. इट इज बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी, ठीक है. सो नेवल एक्सरसाइज हो गई है. इसका 21st एडिशन जो था दैट वाज होस्टेड, एंड जो फेज कंप्लीट हुआ था, फेज 2 वाज फ्रॉम September 6 टू September 9, और जो फर्स्ट फेज था दैट वाज हेल्ड इन अरेबियन सी, ठीक है. फर्स्ट फेज कहाँ था? अरेबियन सी में था. देन आता है INS सह्याद्री. इसने जो पार्टिसिपेट किया, दिस वाज बिटवीन द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन व्हाट? इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट INS सह्याद्री, दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्ट 17, आपने काफी सुना होगा. उसकी थर्ड शिप जो कि हमने बनाई है इंडिजिनसली, मतलब खुद इंडिया ने जो बनाई है, सो दैट इज डिजाइन अंडर 17 जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर बनाई गई है, ध्यान रखना, INS सह्याद्री. Coming to the next one, that who has been appointed as Prime Minister of Thailand, इसका जो आंसर है that is B, that is Srettha Thavisin. He is 60-year-old and he is
Thai property tycoon. He is very, very famous there. Coming to the next one, India, Middle East, Europe Economic Corridor जो है, it has been formed alongside which summit? So as you all know that G20 की presidency 2023 में किसके पास थी? इंडिया के पास थी. And India से it has been given to which country? It has been given to Brazil. ठीक है, हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर दैट इज नरेंद्र सिंह मोदी ने इसे पास ऑन किया है. ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द G20 समिट इटसेल्फ. व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली इंडिया मिडिल ईस्ट. अब यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है. सो इंडिया, मिडिल ईस्ट और जो यूरोप है उसको कनेक्ट करना इकोनॉमिकली. दिस इज द इकोनॉमिक कॉरिडोर एज यू कैन सी. एंड इसमें नेशंस इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, दे आर कनेक्टेड एज यू गाइस कैन सी. एंड पता है, मैपिंग से जो चीज़ याद होती है ना, उससे अच्छे आप ज्योग्राफी कहीं नहीं पढ़ सकते हो. मैपिंग सीरीज ऑलरेडी टेलीग्राम पे चल रही है इनसाइट एसएसबी के. मेक श्योर दैट यू जॉइन इट बिकॉज बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है वाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, NDA एंड FCAT. प्लीज मेक श्योर दैट यू ऑल्सो गो एंड ज्वाइन टेलीग्राम राइट अवे एंड मैपिंग सीरीज का थोड़ा फायदा उठाओ बिकॉज उससे चीजें याद होंगी. उसके बाद not only this, one most important thing that happened is African Union, that is AU, has been now granted the permanent membership for what? For G20. Again, this was during India's presidency itself, and henceforth this announcement was made by our own Prime Minister Narendra Singh Modi in New Delhi during the G20 summit. Very, very important. ये G20 के time हुआ है. Coming to the next one, which of the following statements is incorrect? Again, incorrect पूछा गया है, ध्यान देना. So the first statement is 43rd ASEAN summit जो है that was in Jakarta, Indonesia. बिल्कुल सही है. Then डेनिस फ्रांसिस जो हैं वो बनते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट एंड ही 78th प्रेसिडेंट. बिल्कुल सही है ये भी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FCAT एज वेल. इसके साथ साथ CDS एंड NDA. ठीक है, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया टाइमोर लेट्स सी में भी अपनी एम्बेसी ओपन करेगी. येस, दिस हैज़ हैपेंड. वेरी राइट. उसके बाद आता है दैट USA हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट दैट इज $2 बिलियन की टू GCF इन G20 लीडर समिट, दैट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड. इस स्टेटमेंट में एक्चुअली US की जगह पे UK होगा, नॉट US. सो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत. एक्चुअल आंसर हमारा क्या रहेगा? इट विल बी D बिकॉज US की जगह क्या होगा यहाँ पे? UK. Coming to the next one, this is actually regarding tiger reserves and पूछा गया है which of the following pairs, हमें पूछा है correctly matched है यहाँ पे. So first pair is रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में. अब ये जितने भी पेयर्स हैं ये सारे अभी रिसेंटली क्या रहे हैं, न्यूज़ में रहे, इसलिए मैंने ऐड किया है. अगेन ये जो है इन मैप सीरीज पढ़ाया गया है ऑन टेलीग्राम, तो इट्स कंप्लीटली, यू डोंट हैव टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी. सो व्हाई डोंट यू यूज दीज रिसोर्सेज व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू. जाके यूज करो. ठीक है, ये भी मैपिंग सीरीज में पढ़ा है. सो रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है. बिल्कुल सही. देखो रानी से याद रख लेना, रानी कहाँ रहेगी? यूपी में रहेगी. बिल्कुल सही. देन आता है कमलांग टाइगर रिजर्व. ठीक है, कमल अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे याद रखना. ठीक है, सो बिल्कुल सही है. देन आता है नवेगांव. नवेगांव ठीक है महाराष्ट्र में है. बिल्कुल सही है ये भी. देन आता है सत्यामंगलम. आवाज इससे आप मतलब खुद ही लगा सकते हो, कुछ ना कुछ साउथ इंडियन नेम है ना. सो तमिलनाडु में. बिल्कुल सही. ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, दैट इज ऑल 4 पेयर्स आर कंप्लीटली राइट हियर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सी कंट्री ने एक्सपीरियंस किया है स्टॉर्म डेनियल एंड इट वाज रियली रियली बैड फॉर द कंट्री एंड हेवी रेन एंड फ्लडिंग वाज सीन. द आंसर फॉर द सेम इज लिबिया. सिटीज जो डरना एंड टोब्रुक, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये हमें सारे मैच द फॉलोइंग करने हैं ऑफ द वर्ड्स. ओके, सो द फर्स्ट वन इज वहीदा रहमान. वहीदा रहमान जो है इन्हें कौन सा मिला है? दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. इसको स्टार मार्क कर लेना. वाई? बिकॉज ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. CDS में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा या फिर NDA में मिलेगा. ठीक है, देन डॉक्टर रवि कन्नन जो हैं इनको कौन सा मिला? इन्हें मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड. रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज़ वेरी वेरी फेमस. ठीक है, फिलीपींस का है ये अवार्ड एंड ये दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज वर्क इन इम्प्रूविंग कैंसर केयर.
ठीक है, कैंसर केयर को इम्प्रूव किया है इन्हें. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज पद्मश्री रवि कन्नन. वाई? बिकॉज ही हैज गॉट पद्मश्री अवार्ड. ओके, so this is the thing. Then coming to the next one, that is Swati Nayak. So she has recently achieved Norman Borlaug Field Award. Then Vigyan Ratna, this is the new award, and again very very important. Vigyan Ratna जो है, this is given in field of science and technology. सो इन दोनों को मार्क कर लो. सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो है विज्ञान रत्न और दूसरा है वहीदा रहमान जो है उन्हें कौन सा मिला है, दादा साहिब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड. जो विज्ञान रत्न है ये आपके एफकैट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एशियन गेम्स. ठीक है, सो एशियन गेम्स का मैं आपका नेक्स्ट मंथ की भी ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर्स रेडी कर ली हैं. सो उसमें भी डिस्कस करने वाली हूँ. एक दो इंपॉर्टेंट नेम्स है तो प्लीज़ ध्यान रखना. द फर्स्ट वन इज कि इंडिया ने इक्वेस्ट्रियन जो है उसके अंदर गोल्ड अटेन किया है. एंड दीज वर द प्लेयर्स. अब देखो ये बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में. बस गोल्ड इक्वेस्ट्रियन में इंडिया ने किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट. बिल्कुल सही है. उसके बाद इंडिया ने सिक्योर किया है सेकंड एशियन गोल्ड क्रिकेट में. नहीं, ये इंडिया का फर्स्ट गोल्ड है. दैट इज मेडन गोल्ड जो हमने जीता है, फर्स्ट गोल्ड जीता है बाय डिफीटिंग श्रीलंका. तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था, आंसर इसका हो जाएगा बी. ठीक है, देन ये भी देख लो एक बार. 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसने जीता है, पलक गुलिया. अब ये क्वेश्चन आ सकता है पलक गुलिया कौन से गेम से एसोसिएटेड है. सो शी इज एसोसिएटेड विद एयर पिस्टल. देन आ सकता है मनु भाकर. ठीक है, शी इज एसोसिएटेड विद विच वन. सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ईशा सिंह एंड रिदम सांगवान नहीं पूछा जाएगा. एक तो मनु भाकर और एक पलक गुलिया, ये आपको याद रखना है. देन coming to the next one, this is regarding which of the following statements are correct पूछा गया है. So मोहन बगन सुपर जायंट जो है उसने दुरंत कप जीता है. Yes, this is completely right. मोहन बगन जो है उसने डिफीट किसको किया है, डिफीटेड ईस्ट बंगाल बाय द स्कोर ऑफ 1-0 एंड उसका 17th टाइटल है. So it makes it as one of the most successful team in the tournament history. The next one is that Pakistan defeated India in final inaugural Men Hockey Asia Cup 2023. नहीं, ये वाली स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इंडिया ने क्या किया है, डिफीट किया है पाकिस्तान को. ठीक है, ध्यान रखना. देन कोको गॉफ becomes the first American teenager जिन्होंने क्या जीता है, यूएस ओपन टाइटल जीता है सिंस सरीना विलियम के बाद अब जाके इन्होंने जीता है. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना. फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है और करेक्ट पूछा है. फर्स्ट थर्ड मतलब आंसर हो जाएगा ए. सेकेंड स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फास्टेस्ट ओडीआई प्लेयर जिन्होंने 13,000 रन रीच किए. द आंसर फॉर द सेम इज विराट कोहली. किसका इन्होंने ब्रेक किया रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है उसे ब्रेक किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कौन सा स्टेट है जो कंट्री का फर्स्ट सोलर सिटी बना है. सो फर्स्ट सोलर सिटी जो है दैट इज मध्य प्रदेश की ही कौन सी सिटी है, जल्दी से आप बताओ. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश. एंड जो सिटी है उसका नाम है क्या, सांची. ठीक है, एंड इट इज कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पावर्ड. इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सब कुछ कम्प्लीटली सोलर बेस्ड है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस इज रिगार्डिंग पंबन ब्रिज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पंबन ब्रिज जो है बहुत ज़रूरी है. सो स्टेटमेंट पूछी गई है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट दिस इज द फर्स्ट एवर वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. फिर आता है ये मंडपम और रामेश्वरम को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली करेक्ट. एंड दिस इज 2.05 किलोमीटर लॉन्ग व्हाट, सी ब्रिज. ठीक है, सी ब्रिज एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ. बिल्कुल सही है. सो करेक्ट पूछे हैं कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी. देन नुआखाई फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर है उड़ीसा. यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है
वो इसको क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। देन आता है विच पब्लिक सेक्टर फर्म जो है इट हैज़ बीन कन्फर्ड विद नवरत्न स्टेटस। नवरत्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोनों एग्जाम के लिए, चाहे वो सीडीएस एग्जाम हो या आपका इफकैट एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स में हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो स्टेटस है वो कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ओके, एंड अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसके पास कि वो 1000 करोड़ तक कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए है। ओके, Coming to the next one, that is Tirupatra district. It was recently seen in news. Why? Because ये तमिलनाडु का first of all district है and new world record बनाया है इसने by making 1546 farm ponds within what? Within just 30 days under MG नरेगा स्कीम, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आता है रायगढ़ शॉल्स। सो रायगढ़ शॉल्स जो हैं ये बनाया जाता है बाय वन ऑफ द ट्राइब्स दैट इज प्रेजेंट इन उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की जो ट्राइब है वो बनाती है और इसका नाम क्या है, डोंगरिया कोंद। ये इस ट्राइबल ग्रुप का नाम है। ठीक है, और अभी से क्या मिला है, जीआई टैग, इसलिए बहुत फेमस हो जाती है। दी शॉल्स आर इन वाइब्रेंट कलर्स एंड आर मेड ऑफ कॉटन। देन बिस्वनाथ घाट, बिस्वनाथ घाट जो है अभी इसको क्या मिला है, बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। दिस इज इन असम। कहाँ है, असम में लोकेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2023 में अवार्ड दिया है। फिर आता है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इसको रेलवे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट, IGBC, दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। Coming to the next question, so अभी recently AFSPA, that is Armed Forces Special Power Act, कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसने रेकमेंड किया है कि विड्रॉ किया जाएगा AFSPA? सो इसका जो आंसर है दैट इज असम। असम में 1990 से ये AFSPA है। ठीक है, एंड नाउ इट इज बीइंग removed. Talking about the next important thing in here, दो important चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। The first one is regarding the rare metal जिसका नाम है वेनेडियम। इसके कुछ कुछ ट्रेसेस अभी रिसेंटली कहाँ मिले हैं, गल्फ ऑफ कंभट जो है वहाँ पे मिले हैं। ये कहाँ है, इट इज़ प्रेजेंट इन गुजरात। देन इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड क्या बनाया जा रहा है, पावर ट्रांसफॉर्मर कहाँ बनाया जा रहा है, बैंगलोर में, बेंगलुरु सिटी जो है कर्नाटका की, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंडिया का फर्स्ट है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज। दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन. I hope you would have loved it and I'll see you in the next video. It will be coming up really soon. अब 3 वीडियोस आपकी बैक टू बैक बहुत जल्दी जल्दी within a day 2 ऐसे करके आती रहेगी. Cover all these videos properly and make sure that you join the batch ASAP because जैसे ही 100 seats full होती हैं and believe me within a day my seats get full. So 500 जो off है आपको मिल रहा है that will be gone and hence you can just join it right away. All the best, keep working smart till I see the name in the list and I'll be super proud of you. Make notes because they are very important. Also they'll be given even on Telegram. ठीक है?